Hello, this is Om Prakash Yadav. Today we are going to discuss one numerical problem. Let us see. Okay, यहाँ पे डाटा हमने लिखा हुआ है, तो हम लोग स्नैपशॉट ले लो आप. ओके, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ और डाटा को लिख रहा हूँ. और जेपी हालमैन की प्रॉब्लम है. Water flow at 50 degree centigrade inside or 2.5 centimeter diameter tube. So there is a tube. This is the tube. So this is the thickness of tube. This is the inner radius and this is what the outer radius. Okay, but they have given the diameter. So inside a 2.5 centimeter diameter tube. So inside diameter is 2.5 centimeters. So what will be the inside radius R1? So that will be half of that. So this will be 1.25 centimeter. आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. अच्छा, what is the water flow at 50 degree centigrade inside a tube? So what is the temperature of inside fluid? That is what Ti. So how much is Ti? This is 50 degree centigrade. That is given. So inside fluid temperature, that is water. So what they have given? 50 degree centigrade. 50 degree centigrade. Such that Hi is equal to 3500. So what is the value of convective heat transfer coefficient for inside of the tube? That is Hi. Hi आपको कितना दिया हुआ है? 3500 watt per meter square degree. 3500 watt per meter square degree. The tube has a wall thickness of 0.8 mm. Other dimension are in centimeter, but they have given thickness in mm. So first you convert into centimeter so that you can add into this one. Okay, so what will be the R2? This R1 plus thickness. R1 plus thickness. So what is the thickness of the wall? 0.1 mm. So convert it to centimeter. So 0.08 centimeter. So R2 is equal to this R1 plus this thickness. So R1 is 1.25 centimeter. Then 8 mm convert it to centimeter. So 0.08 centimeter. So R2 is equal to 1.33 centimeter. Now you have to convert into meter. Okay. Let us move on. With thermal conductivity of 16 watt per meter degree. What is the thermal conductivity of this material K? That is a 16 watt per meter degree. 16 watt per meter degree. The outside of the tube losses heat by free convection. So outside of the tube losses heat to the surrounding by convection with H0 is equal to 7.6. Convective heat transfer coefficient H0 they have given 7.6 watt per meter square degree. So calculate the overall heat transfer coefficient. आपको overall heat transfer coefficient calculate करना है. Variable area है तो आप अंदर और बाहर का दोनों calculate करेंगे. Okay. और then heat loss to the surrounding per unit length which is at 20 degree centigrade. तो आप per unit length आपको निकालना है तो आप L बराबर 1 मीटर रख सकते हो या Q बटा के L आप calculate कर लेंगे. Surrounding is at 20 degree centigrade. तो सराउंडिंग टेम्परेचर T नॉट कितना दिया हुआ है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है. सो दैट इज द डाटा व्हिच इज गिवन टू यू. सो लेट अस सी फर्स्ट विजुअलाइज द डाटा. क्या क्या देखो दिया हुआ है. आपका एक ट्यूब है जिसका इनर रेडियस दे दिया, आउटर रेडियस दे दिया. ये जो मटेरियल है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे दिया. अंदर में जो फ्लूइड है उसके टेम्परेचर को हमने Ti से डिनोट कर दिया और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट को Hi से डिनोट कर दिया. तो Ti और Hi दोनों वैल्यू दिया हुआ है. इनसाइड फ्लूइड टेम्परेचर इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, कम ऑन. जो बाहर का फ्लूइड है सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर T नॉट से और कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H नॉट से डिनोट कर दिया. और ये T नॉट और H नॉट दोनों ही वैल्यू आपको दी गई. आपको पर मीटर लेंथ का कैलकुलेशन करना है तो आप L बराबर 1 मीटर रख सकते हो. आप L बराबर 1 मीटर रख सकते हो. Okay, so almost all the values given. So this is very simple to do the calculation part. Very simple. So first of all, you have to make the equivalent thermal circuit. So first, heat will be converted from this hot fluid to the surface at radius R1. That is this inner surface. So heat convected. Whatever heat is convected, same will be convected through the wall, cylindrical wall, radially. So that will move up to the outer surface. Then again that will be convected to the surrounding. फिर से आपका वो बाहर को क्या होगा? Convect हो जाएगा. So convection, then conduction, then convection. Okay. So first there will be convection between the fluid and the inside surface. So fluid is at a temperature of Ti and the inside surface temperature say this is T1. Say this is T1.
सो टी आई हो गया, टी वन हो गया, उसके बीच में कन्वेक्शन रेजिस्टेंस आर सी आई, सी फॉर कन्वेक्शन एंड दिस आई फॉर इनसाइड. सो 1 upon एच आई इंटू एरिया ए आई. व्हाट विल बी आई? देखो अंदर का फ्लूइड किस एरिया पे होगा, रेडियस r1 पे है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जो आपको ए आई लेना है, 2 pi r1 into l. l will be length of cylinder. So this is 2 pi r1 into l, 2 pi r1 into l. Now in between T1 and T2, let us say the surface, outer surface temperature of the wall, cylindrical wall is T2. तो T1 T2 के बीच में आपका इस सिलेंडर का कंडक्शन रेजिस्टेंस आएगा R. So outer radius R2 and radius R1 है. So what will be conduction resistance? Ln R2 divided by R1. Ln R2 outer beta inner. So R2 divided by R1 divided by 2 pi KL. Okay. Now again you are at the surface. Surface. Now again that heat will be convected to the surrounding. तो T2 T0 के बीच में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन. तो आउटर का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस RC0, C for convection, not for outside. So 1 upon H0, area A0. What will be area A0? अब आप देखो बाहर वाला फ्लूइड किस एरिया के कांटेक्ट में है, तो जो R2 रेडियस पे आपका सिलेंडर है उसके सरफेस एरिया पे आपका फ्लूइड है बाहर वाला. तो क्या हो जाएगा, 2 pi R2 into L, 2 pi R2 into L. ये आपका अंदर का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गया, सिलेंडर का कंडक्शन रेजिस्टेंस हो गया, और आपका बाहर का कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हो गया. ओके. तो अब आपको क्या निकालना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड देन यूआई यू नॉट, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है आपको. तो क्यू का फार्मूला लगा दो. कहां से कहां तक लगाओगे, जहां से जहां तक का आपको टेम्परेचर पता है. तो कहां से कहां तक का टेम्परेचर पता है, लुक एट हियर. अंदर के फ्लूइड का टेम्परेचर टीआई पता है और बाहर के फ्लूइड का टेम्परेचर टी नॉट पता है. तो आपको ये टीआई इज इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है और आपका टी नॉट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है. तो आपको टीआई टी नॉट दिया है, तो टीआई टी नॉट के बीच में आप क्यू का फार्मूला बनाइए. तो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू टीआई माइनस टी नॉट अपॉन आरसीआई प्लस आर सी नॉट. ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों आपका जुड़ जाएगा सीरीज में. तो आपने यहाँ पे लिख दिया. अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है, रख दीजिए. सो टीआई टी नॉट, टीआई इज 50, टी नॉट इज 20. एच आई की वैल्यू 3500 दिया हुआ है. 2 पाई R2 को यहाँ पे आप मीटर में रखेंगे. अगर आपने सेंटीमीटर में रखा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस वाले में वाट पर मीटर मीटर है, इसमें मीटर है, तो ये भी मीटर में होना चाहिए. ठीक है. तो गलती से बचने के लिए आप मीटर में ही लेके जनरली चलो, क्योंकि के और एच में आपका मीटर आता है, तो यहाँ पे भी मीटर होना चाहिए. तो देखो आप 1.25 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया हमने मीटर में. सो दैट विल बी 0.0125 मीटर इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर. एल को हमने 1 मीटर ले लिया, क्योंकि इनको चाहिए फॉर 1 मीटर ऑफ द सिलेंडर. तो 1 कर दिया. देन Ln R2 बटा के R1. देखो ये आपका रेशियो है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी में वाट पर मीटर केल्विन है, मीटर है, लेकिन आपका ये आपस में म्यूचुअली आपका बैलेंस हो जाएगा. सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, रेशियो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप मीटर या सेंटीमीटर किसी यूनिट में रख सकते हो. तो सेफ्टी के लिए आप चाहो तो मीटर में कन्वर्ट कर रखो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Then RC naught 1 upon H naught into 2 pi R2 into L. So what is R2? Look at here. This is 1.33 centimeter, but you have to put it here in a meter. That is 0.0133 into length of the cylinder 1. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की वैल्यू मिलेगा 19 watt. So actually that is what for 1 meter of the cylinders. Also you can say 19 watt per meter. 19 watt per meter, क्योंकि आपने 1 मीटर के लिए निकाला हुआ है. अच्छा, अब आपने क्यू निकाल लिया. अच्छा, बुक में आपको खूब बड़ा बड़ा फार्मूला दिया होगा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के. हमने आपको मना कर रखा है, वैसे मत करिए. कैसे करेंगे, आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालने के लिए एक बड़ा सा फार्मूला यूज कर लिया, बस अब वहीं पे कहानी समाप्त करो. ये भी बड़ा सा फार्मूला आपने रटा नहीं हुआ है, इसको जस्ट यू आर राइटिंग. ओके, याद करने की जरूरत नहीं है. अब फिर से आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालने के लिए उसका एक बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है, उसको यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. With a single line, with a very small calculation, you can get what is the value of overall heat transfer coefficient. Okay, let us come on and see how. So पहले आप inside of the cylinder के लिए लगा दीजिए rate of heat transfer का फार्मूला. So Q is equal to for inside of the cylinder UI, overall heat transfer coefficient for inside of the cylinder. तो ये आपका एरिया भी AI हो जाएगा, TI माइनस T नॉट. यहाँ पे जो आपने टेम्परेचर डिफरेंस लिया हुआ है वही टेम्परेचर डिफरेंस ओवरऑल में भी लेंगे. तो टीआई माइनस टी नॉट हो गया. अच्छा, अभी आई की वैल्यू रख दीजिए. क्या हो जाएगा, अंदर का सरफेस एरिया 2 पाई R1 into L, क्योंकि R1 रेडियस है, 2 पाई R1 into L रख दिया यहाँ पे.
अब सारी वैल्यू रख दीजिए, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 19 रख दीजिए, यूआई निकालना है 2 पाई R1, R1 को मीटर में रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यूआई आपको क्या चाहिए, वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री में चाहिए, तो इसको आप मीटर में रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देन टी आई टी नॉट 50 माइनस 20 हो गया। सो एक छोटा सा इक्वेशन से आपका यूआई निकल के आ गया। व्हाट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एट द इनसाइड? So you have calculated within a second. Within a second, there is no need to use a very long formula which is given in the book. Okay, now come on. Similarly, you apply for the outside of the cylinder. So Q is equal to U naught A naught Ti minus T naught. What will be A naught? तो आपका देखिए बाहर वाला फ्लूइड की सरफेस एरिया पे है, R2 रेडियस पे है, तो 2 पाई R2 into L, 2 पाई R2 into L, Ti minus T naught। अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, Q की वैल्यू 19 है, U naught निकालना है 2 पाई R2, R2 mm को सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रखेंगे। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिलेंडर? और लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 1, तो 1 मीटर रख देंगे। 50 माइनस 20 Ti माइनस T नॉट आपका हो गया। तो यही से आपका आसानी से U नॉट निकल के आ गया। तो बड़े ही सिंपल तरीके से आपका ये UI निकल के आ गया, ये आपका आंसर है, U नॉट निकल के आ गया, ये भी आपका आंसर है, और आपका ये Q निकल के आ गया, दैट इज आल्सो योर आंसर। ओके, तो बड़ा ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल लिया, यूआई निकाल लिया, यू नॉट निकाल लिया। अच्छा, सरफेस टेम्परेचर इनसाइड और आउट का सरफेस टेम्परेचर T1 और T2 भी आपका नोन है। इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हमको T1 और T2 भी चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे? अब आप Q का फार्मूला लगा दीजिए एक नोन और एक अननोन टेम्परेचर के बीच। तो आपका Ti नोन है, T1 अननोन है, तो Ti और T1 के बीच में लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? दिस Q इज इक्वल टू Ti माइनस T1 डिवाइडेड बाय उनके बीच का रेजिस्टेंस RCI। तो क्या है आपका RCI? 1 अपॉन HI एरिया 2 पाई R1 इंटू ER। बहुत ही आसानी से आप T1 निकाल सकते हो। Q कितना आया हुआ है? 90, Ti है 50 माइनस T1 आपको निकालना है, डिवाइडेड बाय HI आपका दिया हुआ है 3500 इंटू 2 पाई R1 0.0125 R1 इंटू L, लेंथ ऑफ सिलेंडर आप 1 मीटर लेके चल रहे हो, तो यहां से आपका ये T1 निकल के आ जाएगा, जो भी ठीक, बड़ा आसानी से आप T1 निकाल सकते हो। अच्छा, अगर आपको मान लो T2 निकालना होगा तो क्या करेंगे आप? T1 और T2 के बीच में लगा दीजिए, या देखो आपको ये T नॉट भी पता है तो T2 और T नॉट के बीच में लगा दीजिए, तो यहां से आप T1 निकाल लेंगे। अगर T2 निकालना है तो Q का फॉर्मूला आप T2 से T नॉट के बीच में लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? दिस T2 माइनस T नॉट डिवाइडेड बाई इनके बीच का रेजिस्टेंस RC नॉट, so that is what 1 upon H naught into area is 2 pi R2 into L, 2 pi R2 into L। तो आपको Q पता है, T नॉट पता है, और नीचे का सब कुछ पता है। यहां से आपका एक T2 निकल के आ जाएगा, यहां से आपका एक T2 निकल के आ जाएगा। बड़े ही आसानी से आप निकाल सकते हो। या मान लीजिए यही सवाल दे दिया ऑब्जेक्टिव में, गेट में दे दिया, आईएएस में दे दिया, और आईएएस में यही सवाल आपका 10 से 15 नंबर 20 नंबर का कन्वेंशनल में भी पूछ लेगा, और इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है 2 नंबर गेट में, हाँ, क्योंकि आईएएस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए केवल और केवल गेट में पूछेगा, तो आपसे कैसे पूछेगा? यही क्वेश्चन गेट में दे देगा, यही डाटा दे देगा, क्या आपसे पूछेगा कि हमको केवल टेम्परेचर T1 बता दीजिए या केवल टेम्परेचर T2 बता दीजिए। केवल आपसे एक टेम्परेचर पूछ लेगा, इधर T1 और T2, केवल एक पूछ लिया। मान लीजिए आपसे केवल T2 पूछा जाता है, ओनली ही इज आस्किंग T2, नथिंग एल्स, केवल T2 पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे? आप एनर्जी बैलेंस लगा देंगे। देखिए, ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो का डायरेक्शन ये होगा, इधर हॉट है, इधर कोल्ड है, अंदर हॉट है, बाहर में कोल्ड है, तो अंदर से बाहर की ओर होगा, तो जो भी आपका हीट इस Ti से T2 तक आएगा, वही हीट तो आगे T2 से T0 तक जाएगा, या जो हीट अंदर से कन्वेक्ट होके अंदर के सरफेस पे जाएगा फिर कंडक्ट होगा, वही हीट आगे कन्वेक्ट होगा। तो आप एनर्जी बैलेंस लगा दीजिए, तो Ti से T2 तक का जो हीट होगा वही T2 से T0 तक का होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? बनाइए। सो दिस Ti माइनस T2, दिस Ti माइनस T2 बटा के दोनों रेजिस्टेंस, सो RCI प्लस कंडक्शन रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू दिस T2 माइनस T0,
T2 माइनस टी नॉट और उसके बीच से आ रेजिस्टेंस RC नॉट। जो भी RC है RC नॉट यहाँ पे रख देंगे। तो आपको देखो ये टी नॉट पता है, ये भी पता है, ये सब नीचे के पता है। तो 1 से 2 लाइन में आप ये अननोन टेम्परेचर T2 निकाल लेंगे। एक ही आपका अननोन होगा और यहाँ से 1 से 2 लाइन में T2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। दैट विल बी योर आंसर। तो बड़ा सा न्यूमेरिकल, इसी को ऑब्जेक्टिव गेट में भी पूछ सकता है आपसे और 1 से 1.5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा।